بیٹا آپ مائک سے بغیر مائک کے تقریر اچھی کر دوں گا. آپ حضرات تھوڑی تھوڑی آگے بڑھیں. ٹھیک ہے، آ جاؤ بھی بڑھے آؤ. ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا. آپ کو بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ محبت سے بولیے یا رسول اللہ. تو اب کچھ لوگ اس میں دلیل مانتے ہیں، کچھ لوگ اس میں دلیل مانتے ہیں. یہ خالد صاحب ہیں، آپ کے امام صاحب ہیں، ہماری بہن چاہیے ہوتی ہے، ہمارے جتنے بھی ممبر ہیں ممبر پر تشریف فرما حضرات، یہ کچھ لوگ اس پر بھی دلیلیں تلاش کر رہے ہیں. کوئی کہتا ہے بھائی حضور کا میلاد منانا جائز ہے، کوئی کہتا ہے بھائی حضور کا میلاد منانا یہ کہاں لکھا ہے، کوئی کہتا ہے بھائی یہ بتاؤ کیا صحابہ نے میلاد منایا تھا یا نہیں منایا تھا. اس پہ بھی دلیلیں تلاش کرتے ہیں. ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دوں. دلیلیں جو لوگ تلاش کر رہے ہیں یہ شمع، روشنی کو کہتے ہیں شمع. روشنی ہے، بتائیں کبھی روشنی کے دلیل اس کے پروانے نے مانگی ہے؟ اس کی ارد گرد جو گھوم رہے ہیں یہ پروانے محبت کرتے ہیں شمع سے، محبت کرتے ہیں لائٹ سے، محبت کرتے ہیں شمع سے پروانے. تو بتائیں کبھی پروانے نے دلیل مانگی ہے کہ شمع ہونے کی ہمیں دلیل چاہیے؟ بتائیں کبھی بلبل نے دلیل مانگی ہے کہ مجھے پھول کی دلیل چاہیے؟ بتائیں کبھی کسی مدھو مکھی نے دلیل مانگی ہے کہ مجھے پھول کی خوشبو محسوس کرنے کے لیے دلیل چاہیے؟ تو بتائیں جب شمع، جب پروانہ بغیر دلیل کے مان سکتا ہے کہ یہ شمع ہے، بلبل بغیر دلیل کے تسلیم کر سکتی ہے کہ یہ خوشبو ہے، تو پھر مصطفیٰ کا امتی کیسے دلیل مان سکتا؟ بے شک ذکر رسول کی دلیل لوگ مانتے ہیں کہ بھئی ذکر رسول کی دلیل. اچھا میں یہاں پر کہتا ہوں کہ ویسے تو ہم بہت دلیلیں پیش کرتے ہیں اور انشاءاللہ آپ کو بھی بے شمار دلیلیں دے کر کے میں انشاءاللہ جاؤں گا. نہیں کروں گا آپ حضرات کے سامنے، لیکن آپ حضرات کے ذہنوں کے مطابق میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہم جس نبی کے تذکرے کر رہے ہیں، ہم جس نبی کے ذکر کر رہے ہیں، جس نبی کے ہم چرچے کر رہے ہیں، جس نبی کا میلاد منا رہے ہیں، وہ کوئی عام نبی نہیں ہے، وہ کوئی عام محبوب نہیں ہے. ہمارا محبوب تو وہ ہے کہ جو خدا کا بھی محبوب ہے. بے شک سبحان اللہ. کوئی گلیوں میں چکر لگانے والا محبوب نہیں ہے، ہمارا محبوب خدا کا بھی محبوب ہے. وہ کسی نے بڑے پیارے انداز میں کہا تھا کہ ہم اپنا معیار زمانے سے جدا رکھتے ہیں اور ہم تو محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں. بتاؤ ہم تمہیں کیسا عطا کر دیا ہے. یہ آواز وہ کتنا پسند ہے، اس کو آپ سیٹنگ کیجیے. تو ایسا محبوب آپ کو اور مجھ کو عطا کر دیا ہے. یہ خوش قسمتی ہے میری، یہ میری خوش قسمتی کہ میں تیرا امتی ہوں. ورنہ بڑے بڑے نبی اپنے تاجوں کو اتار کر کے، سمجھ میں آ رہی بات، بڑے بڑے نبی اپنے تاج کو اتار کر، اپنی پگڑیوں کو اتار کر کے نیچے رکھ رہے تھے اور ان کی بارگاہ میں دعا کر رہے تھے کہ یا اللہ ہمیں نبی نہ بنا کر کے اپنے محبوب کو امتی بنا دے. سبحان اللہ. بتاؤ کتنی بڑی خوش نصیبی ہے. اچھا کچھ لوگ یہ کہیں کہ صاحب تم نبی کے ذکر کو تم بلند کر رہے ہو، تو میں بتاؤں آپ کو، کوئی دنیا کا خطیب یا دنیا کا کتنا بڑا مقرر ہے، کوئی نبی کے ذکر کو کچھ بلند نہیں کر سکتا. کوئی نبی کے ذکر کو کوئی ناطقہ بلند نہیں کر سکتا. رب نے کہا مصطفیٰ کا ذکر کسی خطیب کی خطابت کا محتاج نہیں ہے، مصطفیٰ کا ذکر کسی مقرر کی تقریر کا محتاج نہیں ہے، مصطفیٰ کا ذکر کسی نعت خواں کی نعت کا محتاج نہیں ہے. رب قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، رب فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اللہ ارشاد فرماتا ہے محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو بلند فرما دیا ہے. اور لوگوں کیسا بلند کیا ہے، کہاں بلند فرما دیا ہے. بلند کر رہا نہیں، کہا محبوب بلند کر دیا ہے. اور کہا محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو اتنا بلند کر دیا ہے کہ آپ کا ذکر اب کسی خطیب کی خطابت کا محتاج نہیں ہے. محبوب ایسا نہیں ہوگا کہ خود خطیب خطاب کرے تب لوگوں کو پتا چلے کہ اب رب کے محبوب ہے. محبوب آپ کا ذکر تو اتنا بلند کر دیا ہے، اے محبوب اب جہاں جہاں میرا نام لیا جائے گا وہاں وہاں تسبیح تیرے ہوں گے. کہا محبوب اگر اذانوں میں نام میرا لیا جائے گا تو جلوے تیرے نظر آئیں گے. کہا محبوب لوگ نمازیں میری پڑھیں گے، عبادت میری کریں گے، لیکن محبوب اس وقت میں بھی ادائیں تیری ادا کریں گے. اور اس کا بیس بڑھائے بالکل آواز بولتا ہے، بالکل نہیں بولے لگا.
बेस बड़ा इसका थोड़ा कोने मोटा तस्कीरा चल रहा था कहा वरफ़अना लका ज़िक्रक कहा महबूब आपका जिक्र किसी का मोहताज नहीं होगा, न किसी खतीब की खिताबत का जिक्र मोहताज होगा, न किसी नाक खा के नाक का जिक्र मोहताज होगा। फिर कैसे? तवज्जो करें थोड़ी इस तरफ। आओ मैं आपको बताऊं, रब ने कहा वरफ़अना लका ज़िक्रक, कहा महबूब हमने आपके जिक्र को बुलंद किया है। और कितना जिक्र बुलंद कर दिया मुस्तफा का। तवज्जो करें, कहा महबूब अज़ानें होंगी, अज़ानों में नाम मेरा लिया जाएगा। जब अज़ानों में जहां मेरा नाम होगा वहीं पर तेरा नाम होगा। अज़ानों में जब मेरा नाम लिया जाएगा जलवे तेरे नजर आएंगे। लोग इबादत मेरी करेंगे, नमाज मेरी पढ़ेंगे, लेकिन अदाएं तेरी अदा करेंगे। बात यही खत्म नहीं की। रब ने कहा महबूब जन्नतें मैं बनाता हूँ लेकिन मालिक तुझे बना देता हूँ। कहा महबूब जिक्र जितना जो तेरा जिक्र करेगा यही तक रही। कहा तेरे जिक्र को इतना बुलंद कर दिया, अब जो तेरे जिक्र करेगा मैं उसका रुतबा बुलंद कर दूंगा। वो बात यही खत्म नहीं की। कहा महबूब दुनिया के जिस खित्ते के अंदर मेरी खुदाई है, जहां जहां तक मेरी खुदाई है वहीं तक तेरी मुस्तफाई है। रब ने अपने महबूब को, इतने महबूब के जिक्र को इतना बुलंद कर दिया कि दुनिया के हर खित्ते में देखे अगर अज़ानों में खुदा का नाम है तो मुस्तफा के जलवे है। नमाज़ें अगर खुदा की करते हैं तो अदाएं मुस्तफा की अदा करते हैं। उसी तरह फिर किसी शायर ने कहा था, कलम उठा करके आला हज़रत ने कहा था, किसी शायर ने बड़े प्यारे अंदाज में कहा था कि रहेगा यूं ही उनका जलजा रहेगा, बड़े खाक हो जाए जल जाने वाले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मशरक़े आला हज़रत सरकार की आमद, दिलदार की आमद, पुरनूर की आमद। नारे तकबीर, नारे रिसालत। तुम्हारा सेट ये सीना भी फाड़ देना और हालत नहीं खत्म करते। समझ में आ रही बात आपके? अब देखिए मुस्तफा के जिक्र के जलवे आप बड़ी संजीदगी से सुने। सेट थोड़ा साथ ही दिया आप ऐसे तवज्जो से सुने। मोहब्बत से बोलिए या रसूल अल्लाह। अब देखिए मुस्तफा के जिक्र के जलवे। आप बताओ आप प्यार किससे करते हैं? आप बताओ आप मोहब्बत किससे करते हैं? आपका और हमारा नबी कोई आम नबी नहीं है। आपका और हमारा मुस्तफा कोई ऐसा आम नबी नहीं है, बल्कि वो तो वो नबी है कि जिसके बारे में रब ने कुरान में इरशाद फरमाया। तवज्जो मेरी तरफ करें, तवज्जो करें, मोहब्बत से बोलिए या रसूल अल्लाह। आपका और हमारा नबी कोई आम नबी नहीं है, बल्कि मुस्तफा की जात तो वो जात है कि जिस पर अंबिया आने के लिए नाज करते रहे, जिसके उम्मती बनने के लिए अंबिया नाज करते रहे। कौन सी जात है मुस्तफा की? आप बताएं क्या जात है मुस्तफा की? तो सुने मुस्तफा के हुस्न के तज़किरे। अगर आप मुस्तफा के हुस्न के तज़किरे सुनेंगे तो दिल की कलियां खिल जाएंगी। क्या शान है आका की। आप पढ़े मुस्तफा की तारीख, मुस्तफा के सहाबा की अंजुमन लगी हुई है। सहाबा इधर इर्द गिर्द तशरीफ फरमा है, बीच में सरकार बैठे हुए हैं। मुस्तफा के सहाबा सरकार अलैहिस्सलातु व तस्लीम के हुस्न जमाल की बातें करते हैं। कभी कोई मुस्तफा का आशिक खड़ा होता है, कभी कोई आका का गुलाम खड़ा होता है, कभी कोई सहाबी रसूल खड़ा होता है। और खड़ा होने के बाद कोई आशिक अर्ज करता है, हजरत अबू बकर सिद्दीक खड़े होते हैं और अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह मैंने आपसे ज्यादा किसी को हसीन जमीन नहीं देखा। आका मेरी आंखों ने आपसे ज्यादा किसी को खूबसूरत नहीं देखा। वहीं पर मुस्तफा के गुलाम हसन बिन साबित की तशरीफ फरमा थे, अबू हुरैरा ने तशरीफ फरमा थे। अबू हुरैरा ने इतना सुना, मुस्तफा की तारीफ बयान की जा रही थी, तरफ करके खड़े हुए और अर्ज करने लगे कल कमर लैलतुल बद्री लम अरा क़ब्लहू वला बअदहू मिस्लहू। अर्ज करने लगे लोगों तुम बात करते हो मुस्तफा की तरह, मुस्तफा का चेहरा तो चौधरी रात को चांद है। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लामा मौलाना फैज़ान रज़ा खलीली साहिब किबला। नारे तकबीर, ईगो कम करें इसकी, बिल्कुल ईगो इसकी बहुत कम कर दें। इनकी पब्लिक की समझ में नहीं आएगा। हाँ
मुस्तफा के हुस्न के तस्करे, क्या शान है मुस्तफा की। आप फरमाते हैं हजरत अबू हुरैरा वहीं पर बैठे हुए थे, अर्ज करने लगे कल कमरी लैलतल बदरी लम अरा क़ब्लहु वला बअदहु। अर्ज करते हैं कि या रसूल अल्लाह मैं आपका चेहरा 14वीं रात के चांद की तरह है। और कहते हैं आका 14वीं रात के चांद की तरह ही नहीं, आका आपका चेहरा तो 14वीं रात के चांद से भी कहीं ज्यादा आला है, कहीं ज्यादा अफजल है। वहीं पर हस्सान बिन साबित भी बैठे हुए थे और अर्ज करने लगे, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, अर्ज करते हैं हस्सान बिन साबित व अहसनु मिनका लम तरा क़त्तु ऐनी व अजमलु मिनका लम तलिद निसा खुलिक़ता मुबर्रअन मिन कुल्ली ऐब कअन्नका क़द खुलिक़ता कमा तशा। अर्ज करते हैं हस्सान बिन साबित कहते हैं अबू हुरैरा देखते कहां से, जब दुनिया की किसी मां ने ऐसा बेटे को पैदा ही नहीं किया है, कहा खुलिक़ता मुबर्रअन मिन कुल्ली ऐब, कहा या रसूल अल्लाह अल्लाह ने आपको हर ऐब से पाक पैदा फरमाया है। आप कहेंगे ये तो हस्सान बिन साबित की बोली है। आओ फिर मैं आपको लेकर के चलता हूँ हजरत तायूस सिदरा की बारगाह में, ये जिब्रील अमीन की बारगाह में लेकर के चलता हूँ। ये अर्ज करते हैं तल्लक़तुल अर्दा मशारिक़हा व मग़ारिबहा फलम अरा मिस्र मुहम्मद। अर्ज करते हैं आका मैंने आपसे ज्यादा न मशरिक में किसी को हसीन देखा, न मगरिब में किसी को खूबसूरत देखा है। मुस्तफा की जात तो बड़ी बुलंद बाला है। उसी तरफ आला हजरत कलम उठा करके अर्ज करते हैं, लिखते हैं या रसूल अल्लाह तेरे आगे यूं है दबे बच्चे फुसहा अरब के बड़े बड़े, कोई जाने मुंह में ज़बान नहीं बल्कि जिस्म में जाने। आप माइक से बगैर माइक के तकरीर अच्छी कर दूंगा। आप हजरत थोड़ी थोड़ी आगे बढ़ ठीक है, आ जाओ भी बड़े आओ। आप बात बताने के लिए आए हैं, इसमें आवाज कहाँ आ रही है किसी को? ये ना बोल रहा और ना मुझे बोलने लगे ना समझ में आ रही है बात। खाली बस सुराइयों के बाद सुराइयों के बाद डिब्बे को बंद कर सामने सुराइयों के बाद कलमा शरीफ पढ़ी मरतबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम की जात बड़ी बाबरकत जात है और इतने मुकद्दस नबी अल्लाह ने मुझे और आपको अता कर दिए। आप देखें कुछ लोग उस पर भी एतराज करते हैं। कोई एतराज करता है कि मुस्तफा का मिलाद मनाए या ना मनाए, कोई कहता है मुस्तफा का मिलाद किस अंदाज से मना जाए, कोई कहता है तुम मुस्तफा का मिलाद मनाते हो, क्या इसकी कोई दलील है? हाँ दलील है, दलील देने के लिए बेशुमार दलीलें दे सकता हूँ। सुने मुस्तफा अलैहिस्सलाम के मिलाद मनाने की दलील। कौन सी दलील? ऐसी दलील कि जिसको दुनिया का कोई शख्स फेल नहीं कर सकता। कौन सी जात है? हजरत अबू बकर सिद्दीक की बड़ी मुकद्दस जात है। आप फरमाते हैं सरकार की बारगाह में मुअद्दिबाना अर्ज करते हैं और अर्ज करते हैं मन अनफक़ा दिरहमन अला क़िराती मौलिदिन नबी की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अर्ज करते हैं कि अगर किसी ने मुस्तफा के मिलाद पर 1 दिरहम खर्च किया, अगर किसी ने मुस्तफा के मिलाद पर 1 रुपया भी खर्च कर दिया तो आप फरमाते हैं गोया कि उसने 1 रुपया खर्च कर दिया तो अबू बकर सिद्दीक उसको अपने साथ जन्नत में लेकर गए। वाह 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 सुभान अल्लाह। कहते हैं उसको अपने साथ अबू बकर सिद्दीक जन्नत में लेकर के चला जाएगा। और हजरत उमर फारूक आज़म फरमाते, कौन उमर फारूक आज़म है? ये वही उमर फारूक आज़म है जिनके बारे में आता है कि मुस्तफा अलैहिस्सलाम ने फरमाया अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर मेरे बाद नबी होते। ये वही उमर है। आप फरमाते हैं, कहते हैं मन अनफक़ा, आप फरमाते हैं मन अज़्ज़मा मौलिदन नबी की सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फ़क़द अहया अल इस्लाम। कहते हैं अगर किसी बंदे ने मुस्तफा के मिलाद की ताज़ीम की, मुस्तफा के मिलाद की इज्जतें की तो गोया के उसने इस्लाम को दोबारा से जिंदा कर दिया। सुभान अल्लाह।
मुस्तफा की मिलाद की बरकतें हैं। और बात यही तक रही, हुजूर अलैहिस्सलात व तस्लीम, आज कुछ लोग कहते हैं हुजूर अलैहिस्सलात व तस्लीम की शान तौहीन करते हैं, तो तौहीन इस अंदाज में करते हैं, वो बदबख्त सोचते हैं कि मुस्तफा अलैहिस्सलात व तस्लीम के साथ की अगर तौहीन करेंगे तो शान कम हो जाएगी मुस्तफा की जात की कभी मुकद्दस शान कम नहीं होगी। सरकार की जात तो ये है, मुस्तफा की शान तो ये है कि खुद रब्बे कायनात मुस्तफा अलैहिस्सलात व तस्लीम की शान को बुलंद फरमाता है। खुद रब्बे कायनात मुस्तफा अलैहिस्सलात व तस्लीम की जात को बुलंद कर रहा है। और अल्लाह ने अपने हबीब अलैहिस्सलात व तस्लीम की शान बयान करने के लिए तकरीबन 1,24,000 या 2,24,000 अंबिया इकराम को दुनिया में मबऊस फरमाया। आप देखें हजरत आदम अलैहिस्सलाम दुनिया के अंदर क्यों भेजे गए? हजरत आदम दुनिया में इसीलिए भेजे गए कि मुस्तफा की इज्जतों को बयान करते रहे। हजरत शीस अलैहिस्सलाम व तस्लीम को दुनिया के अंदर इसीलिए मबऊस कराया गया कि वो हुजूर अलैहिस्सलाम व तस्लीम के नामों से रिसालत पर पहरा देते रहे। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम दुनिया के अंदर इसीलिए तशरीफ लेकर के आए कि वो हुजूर अलैहिस्सलाम व तस्लीम की इज्जतों में इजाफा करते रखे। हजरत लूत अलैहिस्सलाम दुनिया के अंदर आए तो प्यारे आका अलैहिस्सलाम व तस्लीम के नातो मनक़बत गाते रहे, मुस्तफा की तारीफ करते रहे। बात यही तक खत्म नहीं हुई। आप देखें तुम्हारे नबी की शान क्या है, पैगंबर इस्लाम अलैहिस्सलाम व तस्लीम की क्या शान है। आता है मुस्तफा की जात तो वो है कि अगर अबू जहल मुस्तफा की बारगाह में आता है और आने के बाद हाथ में कंकरी लेता है और आजमाना चाहता है पैगंबर इस्लाम को, तो लोगों जुमले को याद रखना, हाथ अबू जहल का होता है, मुट्ठी अबू जहल की होती है, कंकरी अबू जहल के हाथ में होती है, लेकिन कलमा मुस्तफा का पड़ती है। तुम्हारे नबी की जात तो ये है, तुम्हारे नबी की शान तो ये है कि अगर मुस्तफा किसी आंखों ना आंखों वाले पर, किसी नाबीना के आंखों पर अपने लुआब दहन को लगा दे तो अल्लाह उसको आंखें अता फरमा देता है। तुम्हारे नबी की शान तो ये है कि अगर मुस्तफा किसी मुर्दे के अंगूठे को पकड़ ले तो लब्बैक या रसूल अल्लाह कहता हुआ खड़ा हो जाता है। सरकार की जात तो ये है कि अगर मुस्तफा किसी गरीब के लिए, किसी मजदूर के लिए दुआ कर दे तो अल्लाह ताला उन गरीबों को, उन मजदूरों को 500 साल पहले जन्नत अमीरों से पहले अता फरमा देगा। मुस्तफा की जात मुकद्दस की शान तो ये है कि अगर मुस्तफा चाहे तो अबू बकर सिद्दीक को जन्नती बना दे। आका को अल्लाह ने इतना लाबफुल अता फरमाया है, इतनी पावर अता फरमाई है कि सरकार जिसे चाहते हैं जन्नत अता फरमा देते हैं। और लोगों बात यही तक नहीं, मुस्तफा की जात तो ये है कि अगर आका इशारा कर दे तो सूरज पलट करके वापस आ जाता है। मुस्तफा अगर इशारा कर दे तो चांद टुकड़े हो जाता है। मुस्तफा की इज्जत तो ये है कि अगर पैगंबर इस्लाम इशारा कर दे तो दरख्त मुस्तफा के कदमों में गिर करके सलाम पेश करते हैं। और सरकार की मुकद्दस जात तो ये है कि अगर मुस्तफा इशारा कर दे तो कायनात में अल्लाह उनकी मर्जी से, अल्लाह मुस्तफा की मर्जी के मुताबिक किबलों को चेंज कर देता है। और लोगों यही अगर और मुस्तफा की शान देखनी है तो चलते हैं बरेली की धरती पर आला हजरत की बारगाह में और कदमे आला हजरत को झूम करके अर्ज करते हैं कि आका इमाम मोहम्मद रज़ा ये बताओ तो सही क्या मुस्तफा की यही इज्जतें हैं या और भी हैं? तो आप फरमाते हैं कि दिल को लगा मुस्तफा के मदीने की जानिब और सुन मुस्तफा की इज्जतें क्या है। सरकार की इज्जतें ये है, आप फरमाते हैं कि अर्श हक है, मसनद रिफात रसूलुल्लाह की और देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह। नारे 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 जश्न मिलाद नबी हजरत मौलाना फैजान के साथ मिला, दोनों हाथों को उठा के बोले नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, नारे गौसियत। जश्न मिलाद नबी हजरत मौलाना फैजान के साथ मिला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब सुने मुस्तफा की जात क्या है, मुस्तफा की इज्जतें कितनी है। ये जो बदअकीदे मुस्तफा के मिलाद पर एतराज करते हैं, इसी जुमले पर आला हजरत के शेर पर सुने, कहते हैं अर्श हक है, मसनदे रिफात रसूलुल्लाह की देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह की। कहते हैं लोगों
अभी तो मुस्तफा की इज्जतें कुछ नहीं देखी है, अगर असल इज्जत देखनी है तो कयामत के दिन देखना क्या इज्जत होगी। आका फरमाते हैं कयामत के दिन तमाम नबियों की उम्मतों की, तमाम नबियों की जितनी उम्मतें हैं सबकी सब जन्नत में बाद में जाएंगी, मेरी उम्मत जन्नत में पहले चली जाएगी। आका फरमाते हैं अगर मुस्तफा की इज्जतें देखनी है तो देखिए क्या इज्जतें होंगी। यही बदअकीदे जो आज एतराज करते हैं मुस्तफा के मिलाद पर, जो एतराज करते हैं मुस्तफा की जात पर, जो एतराज करते हैं मुस्तफा की शान पर, उसी तरफ इशारा करके आला हज़रत लिखते हैं कि टूट जाएंगे महशर में, टूट जाएंगे गुनाहगारों के फौरन कैदो बंद, खुल जाएगी हश्र को ताकत रसूलुल्लाह की। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, बहुत बहुत हश्र को क्या ताकत मिलेगी सरकार की। आप देखिए कयामत का दिन होगा, बड़ी जहन करीब करे मेरे, कयामत का दिन होगा जब अल्लाह रब्बुल इज्जत फैसला सुना देगा। जन्नती जन्नत में जा रहे होंगे, जहन्नमी जहन्नम में जा रहे होंगे। उस वक्त देखें कुछ ऐसे भी होंगे कि जिन्होंने नमाजें भी पढ़ी है, रोजे जिनके पास है, इबादत जिनके पास है, नमाजें जिनके पास है, हज जिनके पास है, उनको जहन्नम में भेजने का हुक्म होगा तो अर्ज करेंगे मालिक हम तो दुनिया के अंदर नमाजें भी पढ़ा करते थे, रोजे भी रखा करते थे, लेकिन आज जहन्नम में क्यों भेजे जा रहे हैं। तो उस वक्त कहा जाएगा कि तुम्हें मालूम नहीं था, अहमद रज़ा ने क्या कहा था कि हश्र को खुल जाएगी ताकत रसूलुल्लाह की। उसका मतलब यह है कि जो दुनिया में मुस्तफा के मिलाद की ताज़ीम करते रहे, जो दुनिया में मुस्तफा की इज्जतों पर पहरा देते रहे, जो दुनिया में मुस्तफा को नबी अफजलुल अंबिया कहते रहे, अफजलुल नबी कहते रहे, तमाम नबियों से अफजल कहते रहे, आज उन्हीं के लिए जन्नत के मुस्तह सुना दिए जाएंगे और आवाज आएगी कि तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहां भी दूर हो हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह की। सुभान अल्लाह, बहुत बहुत सुभान अल्लाह, क्या बात है, बहुत रसूल अलैहिस्सलाम की जात बड़ी बाबरकत जात है। लोग एतराज करते हैं और लोग पूछते हैं कि मिलाद किसको मनाना चाहिए, मिलादुन नबी पर एतराज। मिलादुन नबी किसको कहते हैं? मिलादुन नबी कहते हैं हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम की जिस दिन पैदाइश हुई थी, मुस्तफा अलैहिस्सलाम की पैदाइश की खुशी में सरकार की नातो मनक़बत करना, मुस्तफा की शान में कुछ बयान करना, मिलादुन नबी कहते हैं। अब लोग बदअकीदा एतराज करते हैं, कारी फरकान साहब बदअकीदा एतराज करते हैं, कहते हैं मिलाद किसको मनाना चाहिए। लोग एतराज करते हैं कि मिलादुन नबी किसको मनाना चाहिए, मुस्तफा का मिलाद कौन मनाए। तो जुमला नोट करना, मुस्तफा का मिलाद किसको मनाना चाहिए, मैं पता करके जाऊं। मुस्तफा का मिलाद हर उस बुजुर्ग को मनाना चाहिए कि जब मुस्तफा दुनिया में तशरीफ लगी लेकर के आए थे, तो उस वक्त में जब आका तशरीफ लगी लेकर के आए थे, जुमलों को याद रखना, तो जब मुस्तफा तशरीफ लगी लेकर के आए थे तो जब अपने बाप के गिरे बाप को पकड़ करके बाजारों में बेच रहा था, अगर किसी के बाप की दाढ़ी सफेद हो जाती तो उसका सगा बेटा अपने बाप को बाजारों में बेच दिया करता। लोगों मिलादुन नबी हर उस बूढ़े को मनाना चाहिए कि जब मुस्तफा आए, आका ने आकर के फरमाया लोगों सुनो, जिन बापों को तुम नहूसत समझ रहे हो, जिस बाप को तुम कमजोर समझ रहे हो, जिस बाप को तुम नहूसत समझ रहे हो और जिस बाप को नहूसत समझ करके बाजारों में बेच रहे हो, याद रखो अब जिसका बाप राजी होगा उसी का खुदा राजी होगा। बाबा सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान अब अल्लाह। जिसका बाप राजी होगा उसी का खुदा राजी होगा। और लोगों मिलादुन नबी हर उस माँ को मनाना चाहिए कि जब जिस माँ का शोहर इंतकाल कर जाता तो उसी का जवा बेटा अपनी माँ को अपने बाप की चिता के ऊपर रख करके जिंदा दफन कर दिया करता, अपनी माँ को बाजारों में बेच दिया करता, अपनी माँ को बाजी बना लिया करता, अपनी माँ को जंगलों में छोड़कर आगे आ जाता। वो लोगों मिलादुन नबी हर उस माँ को मनाना चाहिए कि जब मुस्तफा दुनिया में तशरीफ लाए तो आका ने आकर के इरशाद फरमाया, सरकार फरमाते हैं अल जन्नतु तहता अक़दामिल उम्महात,
आका फरमाते हैं लोगों जिन माओ को तुम सता रहे हो मैंने इन्हीं माओ की इज्जतों को काबे से बुलंद फरमा दिया है और इन्हीं माओ के कदमों के नीचे जन्नत को रख दिया। सुभान अल्लाह, बहुत बोल रहे, सुभान अल्लाह। कहा इन्हीं माओ के कदमों के नीचे मैंने जन्नत को रख दिया है। उन लोगों और बताऊं मिलादुन नबी किसको मनाना चाहिए? बात समझ में आ रही है? मोहम्मद से बोलिए या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। नबी किसको मनाना चाहिए? हेलो। मिलादुन नबी मिलादुन नबी किसको मनाना चाहिए? आओ मैं बताऊं आपको मिलादुन नबी किसको मनाना चाहिए। मिलादुन नबी हर उस माँ को, हर उस बहन को मनाना चाहिए कि जब जिसके शोहर का इंतकाल हो जाता तो सगा भाई अपनी बहन को नहुसत समझ रहा था। अगर किसी के घर के अंदर बेटी पैदा हो जाती तो बाप बेटी को नहुसत समझ रहा था, बाप बेटी को जलील करता था, बाप बेटी को जिंदा दरगोर कर दिया करता, बाप बेटी को जिंदा दफन कर दिया करता। वो तो मुस्तफा आए और आने के बाद आका ने जुमला इरशाद फरमाया, आका फरमाते हैं लोगों सुनो, अब जिसने अपनी बहन या जिसने अपनी बेटी की शरीयत मुताहिरा के दायरे में रह करके शादी कर दी, मैं जमानत लेता हूँ जन्नत की कि उसको अपने साथ जन्नत में लेकर के चला जाऊँ। सुभान अल्लाह।